give them easy approvals on land, give them power connections, give them road connectivity, give them ease of doing business, and then see how entrepreneurs of India compete with the rest of the world, including China. Hello, everyone. If there is any nation whose time has come, it's no doubt India. India is one of the fastest growing economies in the world presently, and it's been said that next decade and at least next 25 years will belong to India. अगर हमें जानना है कि क्या वर्क कर रहा है इंडिया के लिए, तो there cannot be a better person than Mr. Nilesh Shah. Mr. Nilesh Shah is MD of Kotak Mahindra AMC. He is a seasoned market expert and he is also a member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister of India. It's our pleasure to have Mr. Nilesh Shah at our Dhan studio today. Nilesh bhai, we would really love to listen from you कि what has changed in India and आपका experience in last 30 years India तब का, India आज और India आने वाले कल में क्या रह सकता है? So Jay, if you see Indian cricket team, that truly reflects India. In the 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, we were always defensive. Sunil Gavaskar was the greatest opening batsman of his era. And, many a times it was said that एक बार वो आउट हो गया तो पूरी टीम वापस आ जाएगी. We had to always play to draw the match, and many a times we used to lose the match. And in fact, it was also said that India is a team which will snatch defeat from the jaws of the victor. Today, if you look at our cricket team, they go with the mindset to win. They win in Australia, they win in England, they win in West Indies, they win in South Africa. And कई बार देखा है कि like 6, 7, 8 विकेट गिर गई है. And yet the 9th player goes with the confidence कि ये तो मैच जीत के ही आऊंगा. I think the transition which we saw in Indian cricket team, the same transition is happening in India. पहले हम लोग स्पिन बॉलिंग करते थे, किसी को लग नहीं जाए वैसे विकेट लेते थे. Now we have Mohammad Siraz and Mohammad Shami, firing missiles. So that transition has happened in India, which from a docile, always defensive country, we are willing to take the spot on the table, which is rightfully ours. Yeah, that's truly said. So sports reflects the mood of the nation. आज हम लोग athletics में भी the kind of gold medals we are winning, we are playing to win. ऐसे नहीं कि हम draw करने के लिए खेल रहे हैं. That's very rightly said. So Nilesh bhai, coming to what about China? China could achieve such a phenomenal growth. There could be a lot of reasons, but what I see primarily is they had a surplus of labor which kept their wages under control. Second, वहाँ पे autocratic government था. Government बोला है ये करना है, तो that used to happen. And the third big reason was a globalization. 1990s में all countries in the world were they were in favor of globalization. जहाँ cheapest manufacturing होता है वहाँ करना है. आज के situation में is it possible for India like to become a manufacturing hub? One. Second is हम क्या वो मेंटेन कर पाएंगे वेजेस अंडर कंट्रोल ताकि इन्फ्लेशन नहीं बढ़े? और ग्लोबलाइजेशन का क्या? ग्लोबलाइजेशन उतना बड़ा फैक्टर नहीं है. पीपल आर ऑलवेज ट्राइंग टू बिकम कंजर्वेटिव, मी एंड माय कंट्री. सो व्हाट वुड बी द चैलेंजेस फॉर इंडिया इफ दे वांट टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब? सो चाइना हैज क्रिएटेड अ मिरेकल, बट उनके मिरेकल का जो मॉडल है वो दुनिया के बहुत सारे देश फॉलो नहीं कर पाएंगे. ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, अंडरवैल्यूड करेंसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने में उन्हें कोई ह्यूमन राइट्स दिखते नहीं थे, और सबसे इम्पोर्टेंट दे वर इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, उन्होंने इतनी कॉस्ट कम कर दी थ्रू वेरियस मेजर्स कि वो सक्सेसफुल हो गए. हमारा मॉडल चाइना का मॉडल नहीं हो सकता. हम अपने लेबरर्स को कभी इस तरह दबा नहीं पाएंगे, अंडरवैल्यूड करेंसी नहीं रख पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तेजी से क्रिएट नहीं कर पाएंगे. There are some states in India which have delivered better growth rate than China without any of this thing. One state is Gujarat.
for a long period of time, Gujarat's growth rate was better than China. Without undervalued currency, without autocratic government, without creating infrastructure through foreign direct investment. What was it? It was the entrepreneurship of Gujarati and taking advantage of the natural factors. The best example of this is, let's say, Singur versus Sanand. Tata's wanted to set up their automobile factory in Singur, struggled for a few years, didn't work out, finally had to come out. Today, Singur is underdeveloped. There is hardly any job or growth or prosperity. In Sanand, Tata's came, they got a red carpet. Infrastructure was provided, land was given, power connection came, connectivity came. In 18 months, Nano car started rolling out. Nano failed, but Tata factory became a hit. Then Maruti came over there. Today, Sanand has become export hub of automobiles as well as local manufacturing. There are ancillaries in other industries. You can see jobs, growth and development. I think if India has to create alternative to China, it has to follow Sanand model. Give red carpet to businessmen and entrepreneurs in industry. Give them easy approvals on land. Give them power connections. Give them road connectivity. Give them ease of doing business. And then see how entrepreneurs of India compete with the rest of the world, including China. Okay. Nilesh Bhai would like to know something about the geopolitical side. We are seeing a right-wing ideology growing. Western Europe में ये grow कर रहा है. US में they have started focusing on their own manufacturing policy. Inflation Reduction Act is an act passed towards that. बाकी economies में भी, especially Middle East, और हम सऊदी अरेबिया की बात करें, they are trying to decouple themselves from oil and they are trying to promote tourism and climate. Our neighboring countries are facing economic crisis. Pakistan and Sri Lanka को ले लीजिए. China is in a deflationary state. How is it going to be advantageous or disadvantageous for India in both from market and economic perspective? So we have to truly believe what our Honorable Prime Minister said at G20. Vasudhaiva Kutumbakam. We are one family. If we add value to our buyers, why will they refuse? Okay. If we bring trust and confidence in our relationship with our buyers, why will they be afraid of us? And we have done this in two industries, IT and pharma. Today, we can proudly say that without an Indian's contribution, no program will be completed. There will be a code writer from India contributing something to any program written for running any computer. We are adding value to digital world through lower cost, better productivity, and confidence that we will be there to support. That's why in IT industry, India is now one of the global leaders. Same thing we have done in pharma. 45% of medicines consumed by Americans by volume is made in India. And yet it costs just 10% of their pocket. 45% वॉल्यूम देते हैं और 10% पॉकेट शेयर लेते हैं. इतनी सस्ती मेडिसिन और कहाँ मिलेगी? Today, you know, if you want to get visa in most Western world, there is a long line. But there's one category of people for which there is a red carpet, which is nurses and paramedics. Every country wants them. Why? Because they are adding value. They are running short of people to take care of their patients, and Indians by nature are caring. So as long as I'm adding value to my buyers and I'm giving them confidence that this is a long-term strategic partnership, there is Vasudhaiva Kutumbakam spirit, I think people will trade with India, people will buy with India. Okay, wonderful. So, आपको लगता है कि you feel that the trade pacts, there will be some kind of shift there? Undoubtedly. The world is afraid of China. They are too dependent on China and they would like to diversify. अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे
उन लोगों को कन्विंस कर सके कि आप चाइना से नहीं, भारत से डील करिए। सो नीलेश भाई, मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पे है। फॉर अ न्यू इन्वेस्टर जो मार्केट में एंटर करना चाहता है, यहाँ से वो मार्केट को कैसे अप्रोच करे? एक मैंने अपने 30 साल के करियर में लाइफ टाइम हाई मार्केट बहुत बार देखा है और हर बार वो हाई को हम क्रॉस कर देते हैं। जब कारकिर्दी की शुरुआत की थी तो 5000 सेंसेक्स बहुत आगे दिखता था, आज 5000 को कोई पूछता नहीं है। एक नए निवेशक को इस वक्त निवेश करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन तीनों बहुत कॉमन सेंसिकल चीजें जय भाई। एक बूंद बूंद से सागर बनता है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सेकंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। जल्दी का काम शैतान का। तो बिरबल की खिचड़ी है ये, पकने में टाइम लगेगा। अकबर राजा बुलाएगा मतलब खिचड़ी बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपने समय पे पकेगी लेकिन स्वादिष्ट बनेगी, तो समय दीजिए। तीसरा, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। पिछले 6 महीनों में स्मॉल कैप ने रिटर्न अच्छा दिया इसलिए वहां पे चले जाए, एसएमई एक्सचेंज में पैसा रातों रात बन रहा है इसलिए वहां पे चले जाए, ये सब मत करिए। Invest across debt, equity, real estate and commodity. Build a portfolio, give time and do regular investment. That's more than sufficient to secure your financial freedom. Okay. These are golden words, हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारे जो भी listeners हैं उनको भी। So कोई market का जो high है वो mental high है, right? You always need to be investing with a disciplined approach. Absolutely. Great. Nilesh bhai, 2024 is likely to be year of events. इंडिया में जनरल इलेक्शंस हैं, यूएस और रशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में इलेक्शन है, इंडोनेशिया इज गोइंग फॉर पोल्स। ये एक अनसर्टिनिटी क्रिएट कर सकता है आने वाले 1 साल में, जब अगर आउटकम पॉजिटिव नहीं आया तो फॉर अ इन्वेस्टर हु इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन मार्केट्स, उसे अपने कोई पोर्टफोलियो एलोकेशन में चेंज की जरूरत है? अगर हाँ, तो वो किस तरह से अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करे? एक, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप तैयार रहते हैं, कभी यॉर्कर, कभी हाफ वॉली, कभी बाउंसर, कभी बीमर। सेम चीज मार्केट में है, कभी ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। एंड हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। मार्केट का टॉप और बॉटम तो भगवान भी नहीं बता पाएंगे, इंसान की क्या औकात है। हमारे हाथ में है असेट एलोकेशन। अगर मार्केट महंगा है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, मार्केट सस्ता है तो लिवरेज करके इन्वेस्ट करूं। इस वक्त मार्केट अपनी फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर है। स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा ज्यादा ऊपर है, लार्ज कैप में थोड़ा ऊपर है। ये समय लिवरेज का नहीं है। लिवरेज करने के मौके मार्च 2020 में थे, अब नहीं है। सेकंड, इस वक्त मार्केट में गधे घोड़े क्वालिटी कचरा सब भाग रहा है। दिस इज नॉट द टाइम टू बाई ऑन मोमेंटम और कचरा स्टॉक। ये सब पोर्टफोलियो क्लीनिंग का टाइम है। जितने कचरा स्टॉक थे बेच दीजिए, इससे अच्छा मौका शायद बेचने का नहीं मिलेगा। दिस इज टाइम टू गो फॉर क्वालिटी। This is time to go for reasonable valuation. This is time to be overweight large cap compared to small and mid cap. And most importantly, please keep some cash in portfolio. आपने जो इवेंट्स बताई उसमें से कुछ सही आएगी, कुछ गलत आएगी, मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। अगर हाथ में रोकड़ा है तो आप उस करेक्शन में खरीदारी कर पाएंगे। ओके, ग्रेट। सो टेक अवे ये है कि आपके पोर्टफोलियो को एक रिविजिट की जरूरत है। जो स्टॉक्स आपको लग रहा है ओवर वैल्यूड है, उन्हें बेच लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्वालिटी स्टॉक से साथ रहिए और कैश हाथ में रखिए कि मार्केट में कुछ भी अनसर्टेनिटी होता है तो आप सिर्फ देखते ना रह जाएं, आप जाके निवेश भी कर पाए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नीलेश भाई, एक रिटेल इन्वेस्टर्स के तरफ से अगर बात करें तो उनके पास दे डोंट हैव दैट सोफिस्टिकेशन एंड रिसोर्सेज टू गो एंड एनालाइज कंपनीज, डायरेक्ट कंपनीज। ऑब्वियसली उनके लिए बेस्ट वे आउट है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर ये चाहता है कि मुझे कोई कंपनी स्टडी करना है, तो विथ योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द ब्रॉड पैरामीटर्स ध्यान में रखना चाहिए कंपनी को जज करने के लिए इन्वेस्टेबल लाइक कंपनी है या नहीं है? एक 2x2 मैट्रिक्स बनाना चाहिए अपने माइंड में। अच्छा बिजनेस और बुरा बिजनेस।
अच्छा मैनेजर और बुरा मैनेजर। अगर आप बुरे बिजनेस में और बुरे मैनेजर में इन्वेस्ट करो तो नुकसान गारंटेड है। अगर आप अच्छे मैनेजर में बट जो बुरे बिजनेस में काम करता है उसमें निवेश करो तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। और बुरा मैनेजर हो और अच्छी इंडस्ट्री हो तब भी आपका पैसा नहीं बनेगा। जब पैसा बनेगा वो मैनेजर खुद ही घर पे लेके जाएगा। पैसा बनने की सबसे ज्यादा गुंजाइश कहाँ पे है? अ गुड मैनेजर इन अ गुड इंडस्ट्री, वहां पे 100% पैसा बनेगा ना। सवाल ये उठता है कि गुड मैनेजर मतलब क्या, गुड इंडस्ट्री मतलब क्या? एनी बिजनेस, एनी इंडस्ट्री विच जनरेट्स मोर रिटर्न ऑन इक्विटी देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 12% कमा के 10% देना है तो आप हमेशा पैसा बनाएंगे। 10% कमा के 12% चुकाना है तो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली इसमें न्यूआंसेस है। फ्री कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए, डेट से आरओई नहीं बढ़ना चाहिए। देन व्हाट इज गुड मैनेजर? अ मैनेजर जिसके पास कोई विजन है, कुछ करके जाना है उसको दुनिया में, एग्जीक्यूशन हो। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएगा तो खिचड़ी बनेगी नहीं, काम करना चाहिए ग्राउंड के ऊपर जाके। न्यूज़पेपर में पेज 3 में आने की जगह पे फैक्ट्री में काम करना चाहिए। और तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, आपके पैसे को रिस्पेक्ट दे, उसके साथ चोरी नहीं करे। बहुत कम प्रमोटर ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक पार्टनर समझ के उनका ध्यान रखते हैं। सो अच्छा प्रमोटर, अच्छा मैनेजर वही है जिसके पास विजन हो, एग्जीक्यूशन करे और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिस्पेक्ट करे। सो एक निवेशक की तरह आपको अच्छी कंपनी में जो अच्छे मैनेजर द्वारा, अच्छे प्रमोटर द्वारा चला रही है उसमें निवेश करना है। फाइनली अच्छे दाम पे खरीदना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में तो प्राइसेस ऊपर नीचे जाएगी, बट अगर आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके खरीदे तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए पैसा बनाएगी। सो अच्छी कंपनी, अच्छे प्रमोटर और अच्छे दाम, ये 3 चीज ध्यान रखनी चाहिए अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करना है। वंडरफुल। सो नीलेश भाई, अगर ब्रॉडली बात करें सेक्टर्स की, तो कौन से 3-4 सेक्टर हैं जो प्रॉमिसिंग लग रहे हैं फॉर कमिंग टाइम्स? सो एक सेक्टर जहां पे हमें बहुत उम्मीद है वो मैन्युफैक्चरिंग है। चाइना +1 की वजह से ग्लोबल कंपनीज आज भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगा रही है और यह कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट को भी कैटर करती है, ग्लोबल मार्केट्स को भी कैटर करती हैं। इनके वॉल्यूम और मार्जिन अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के सामने अच्छे रहेंगे वैसा लगता है। चाहे केमिकल हो, चाहे हेवी इंजीनियरिंग हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, ये सारी जगह पे हमें लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग थीम आने वाले समय के लिए अच्छा करेगी। दूसरी थीम जो है वो फार्मा रिलेटेड है। दुनिया वृद्ध हो रही है, एजिंग हो रही है, उनके हेल्थ केयर प्लान्स अनफंडेड हैं, उनको सबको अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे नर्स, अच्छी दवाई की अच्छे कीमत पे जरूरत पड़ेगी। पूरे विश्व में एक देश भारत ऐसा है जो दूसरों को डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिसिन सही कीमत पे दे पाएगा। एक रूट कैनल आप लंदन में कराने जाओ तो 1000 से 1500 पाउंड लगते हैं, वही चीज भारत में 5 से 10,000 में हो जाएगी। वही रूट कैनल अगर लंदन में करानी है तो 2 से 6 महीना रुकना पड़ता है। भारत में आप अगर रोते रोते अपने डेंटिस्ट के पास रात को 12 बजे चले जाएंगे, एटलीस्ट मेरी डेंटिस्ट तो मेरे लिए क्लिनिक खोल के काम कर देती है कि रो मत नीलेश भाई, मैं रिपेयर कर देती हूँ तेरे को। सो फार्मा हेल्थ केयर डिलीवरी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे भारत के पास कॉम्पिटिटिव एज है और दुनिया को उसकी ज़रूरत है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज है, थीम है जो लंबे समय के लिए निवेशकों के लिए पैसा बना सकती हैं। ग्रेट। सो नीलेश भाई, थोड़ा सा मार्केट से हटके सवाल है। जब आप मार्केट में नहीं होते हैं या यू आर नॉट प्री ऑक्युपाइड विथ वर्क, आप किस तरह से अपने आप को अनवाइंड करते हैं? सो एक अच्छी तरह से अनवाइंड करता हूँ वो किताबें पढ़ के।
दुनिया में नॉलेज का महासागर है और आपके हाथ में एक कटोरा है, जितना पानी ले सकते हैं ले लेना चाहिए। एक जो नॉट सो अच्छी अनवाइंडिंग है वो नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न प्राइम की आदत है, तो मूवीज़ देखते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते रहते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको आपकी स्लीप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की सही तरीके की नींद मिलनी चाहिए। एंड अगर आप ये ध्यान रख सके कि हमेशा एक ही समय पे सोए और एक ही समय पे उठें, तो आई थिंक आपकी माइंड और बॉडी उसमें फिट हो जाएगी। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप टू अनवाइंड। स्लीप इटसेल्फ इज एन अनवाइंडिंग थिंग। ओके, ग्रेट। नीलेश भाई, एक आखिरी सवाल, 2030 तक आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? फर्स्ट, सेकंड, हम चाइना से अभी बहुत पीछे हैं, वो ऑलमोस्ट 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम ऑलमोस्ट 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, सो देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड 4-5 टाइम्स। तो नेक्स्ट 7 साल में हम कितना ही इसको ब्रिज कर पाएंगे? सो मेरे हिसाब से चाइना हमसे काफ़ी आगे रहेगा। वो एक बहुत ही अलग प्रकार का देश है, यूनिक है, और उन्होंने किसी चमत्कार से कम काम नहीं किया है। आई थिंक हमें चाइना से ज़्यादा अपने आप पे फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है जो 2010 में भारत 12वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और जो 2014 में 10वें स्थान पे पहुंचा और इस वक्त 5वें स्थान पे है, वो तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगा 2030 तक, जापान और जर्मनी को ओवरटेक करते हुए। हमारी इकोनॉमी प्रोबेबली $6 ट्रिलियन से यहाँ से ऑलमोस्ट दुगनी होगी 2030 में। मोर इम्पॉर्टेंटली, उस भारत में 2030 के भारत में हमें 80 करोड़ भारतीयों को फ्री फूड ग्रेन देने की ज़रूरत नहीं होगी। उतने जॉब्स क्रिएट होंगे कि उनको फ्री फूड ग्रेन की ज़रूरत नहीं रहेगी। भारत भले दुनिया की सिर्फ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, बट उसने जो मॉडल बनाया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, एक इंक्लूसिव ग्रोथ का, वो पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल बनेगा। हम एकमात्र देश ऐसे है, एकमात्र सभ्यता ऐसी है जिन्होंने कभी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया, और फिर भी हमने, हमारे यहाँ पे जो लोग आए उनको अपने में मिला लिया। बहुत पहले एक किस्सा सुना था, जब पारसी ज़ोरास्ट्रियन लोग को ईरान में परसिक्यूट किया गया, पर्सिया में परसिक्यूट किया गया, तो वो नाव में बैठ के गुजरात में संजान के किनारे पहुंचे और वहाँ के राजा को रिक्वेस्ट किया कि हमें आप यहाँ पे रहने दे। उन्होंने एक दूध का भरा कटोरा भेजा, सिग्निफाई करने के लिए कि हमारे पास जगह नहीं है। पारसी धर्मगुरु ने उसके अंदर शक्कर मिलाई और वापस भेजा। उन्होंने राजा को ये मैसेज दिया कि हम जैसे दूध में शक्कर मिल गई वैसे आपके वहाँ पे मिल के रहेंगे। रेस्ट इज हिस्ट्री। पारसी लोग यहीं पे रह गए और दूध में जैसे शक्कर मिले हो वैसे रह रहे हैं। जो उन्होंने किया वो भारत ने दुनिया के साथ करना है। दुनिया का कटोरा भले भरा हो, बट भारतीय का हाथ लगने से वो स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ट्रूली हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना लोगों को दिखा पाएंगे। नीलेश भाई, आपसे बात करना, आपको सुनना हमेशा एक प्लेजर रहता है। मतलब इतना कुछ सीखने को मिलता है। यू आर सी ऑफ नॉलेज, राइट? तो 2030 में हम कह सकते हैं, आज हम चाइना मॉडल की बात करते हैं, उस समय लोग इंडिया मॉडल की बात करेंगे। आमीन। थैंक यू सो मच नीलेश भाई, आपने समय निकाला एंड इट्स अ रियल प्लेजर। मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद हमारे जो लिसनर्स हैं उनको एक बहुत इंसाइट मिलेगा, किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करना है, सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन नीलेश भाई। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.